Hello dear friends, with today discussion about the election process of India. The election process of India is before the independence. पहले इंडिपेंडेंस अपने के जो इंडिपेंडेंस नहीं आया वो इंडिपेंडेंस से पहले अपने को ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ बोलते नहीं रहता था अपने ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ नहीं रहता था ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ లాంటిది ఉండకూడదు లేదు మనకు 1600 సంవత్సరం నుంచి మనకు రాణి ఎలిజబెత్ కానీ బ్రిటిషర్స్ కానీ రాజులు కానీ పరిపాలన జరిగినప్పుడు మనకేంటి ఎవరైతే ఆధిపత్యం ఎవరైతే డబ్బులు ఉన్నాయో ఎవరి దగ్గర అధికారం ఉన్నదో అప్పుడే వాళ్ళు ఎవరిని ఎన్నుకోమంటే వాళ్ళని ఎన్నుకునేవారు డబ్బు పరంగా కానీ అధికార పరంగా కానీ పవర్ పరంగా మాత్రం తీసుకునేవాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ మనం చాలా వరకు చూడండి కింగ్స్ కానీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీస్ కానీ బ్రిటిషర్స్ కానీ మనకు రూలింగ్ చేసినప్పుడు మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇండిపెండెన్స్ आने के बाद अपने पास इलेक्शन process start हो गया they have before the independence you have no election there no democracy there democracy they mean demo mean peoples we can elected the one leader people can be elected the one leader a democracy process is the main role of the election process the election system of India they after independence in 1950 25th January in that day I have January 15th we have system of the Indian election system 25th जनवरी 1950 लो मनक इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट अయింది अपने को इलेक्शन प्रोसेस कभी स्टार्ट होया भैया तो 25th जनवरी 1950 को स्टार्ट हो गया इलेक्शन ऑफ कमीशन किस लिए स्टार्ट करा क्या है बोलते सो अपन व्हाट अबाउट व्हाई आर स्टार्टिंग द इलेक्शन प्रोसेस व्हाट इज द इलेक्शन व्हाट इज द वोटिंग एवरीथिंग आल्सो वी डिस्कशन इन द क्लास okay dear students we can listen to very important of lesson of the 10th class okay and groups or anything we want to very important topic of the election process okay autonomous bodies there autonomous bodies we framing the constitution what about the first thing is the constitution is 395 articles 22 parts 8 schedules there on a constitution we started in 1950 26 January we can understanding what about constitution also we framing the election body that is election mean autonomous status of the election commissioner ni gaani election body ni gaani ruling party gaani opposition party gaani evaru kuda dani question cheyalani koi bhi usko question nahi kar sakta unse constitution body से बना हुआ ये इलेक्शन प्रोसेस है भैया उसको कोई भी टच नहीं कर सकते उसे कोई पूछ सकते मगर ऑन बिहाफ ऑन द रूल बट इस उसको गलती से निकाल के वो इलेक्शन प्रोसेस कमीशन को कुछ ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे बोलते इलेक्शन प्रोसेस का खुद का बनाया हुआ एक रूल रहेगा इलेक्शन प्रोसेस का खुद का बनाया हुआ एक्ट है इलेक्शन प्रोसेस का एक आर्टिकल भी है आर्टिकल 324 टू 329 है वो आर्टिकल अंडर द आर्टिकल फ्रेमिस रूल्स होता है उसमें अब इम्पोर्टेंट भी रोल एंड 3 रोल्स देर 3 रोल्स रहेंगे उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल advisory function role quasi judiciary role what is the quasi judiciary mean judicially जैसा रहता judicially mean क्या कोर्ट में जजमेंट देना ऑर्डर देना ये judicially रहेगा judicially या quasi judicially जैसा रहेगा बोल तो मतलब क्या है judiciary कैसा रहेगा कोर्ट में जजमेंट देना ऑर्डर देना quasi बोल तो जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा मगर जुडिशियली पावर्स नहीं रहते वो कंपलसरी है जुडिशियली पावर इट इज़ डिफरेंट क्वासी जुडिशियली पावर इज डेमो पावर्स बोले सर का मैक्सिमम उसको जुडिशियली देने का पावर है मगर क्वासी जुडिशियली कंप्लीट वो जुडिशियली का पावर नहीं मिलेगा उसको क्वासी जुडिशियली कहते हैं एडवाइजरी का फंक्शंस रहना एडवाइजरी फंक्शंस कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स द 3 रोल्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द election commission officer what is the 3 roles administrative roles and advisory role and quasi judiciary role the 3 roles we how to framing the election commissioner वो 3 roles कौन फ्रेम करते हैं इलेक्शन कमीशन कैसे फ्रेम करती है फ्रेम करने के लिए बेसिक क्या है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 टू 329 है
आप एक बार समझना चाहिए अपने पहले कॉन्स्टिट्यूशन से सब कुछ बन जाता। प्रीवियस क्लासेस में क्या बोला, आपको कोई एनी मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम क्लियर करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक फार्मूला होता कंपलसरी, एनी मैथ्स कैन डू द solution the problem if we want one formula. That is, in any country we can framing the one constitution, that is a Indian constitution, very great constitution of the Indian constitution. Okay, the chief election commissioner role also we can framing the constitution is a everybody have been be clearly we can mention the article 322 329, they all and all of the criteria of the election commission of the provinces, election commission of the system. The recommendation of a TN session is a 1990 to 1996 is the election commissioner officer. The 14 days before they have closed the rallies and campaigning also 14 days before close. One candidate we have to only two constituency क्या है, MLAs MPs MLA and MPs have contested for the one constituency. Actually one candidate only two constituency can be contested. एक आदमी एक MLA इधर सपोज एक दो प्लेसेस में दो कॉन्स्टिट्यूंसी में दो नियोजकवर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में वो दो कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्टेस्टेड कर सकता है। एक अकेला वन कैंडिडेट कैन बी कॉन्टेस्टेड इन टू కాన్స్టిట్యున్సీ दो నియోజకవర్గ में वो కాన్సర్త నియోజకవర్గం అనగానేమి మనకు కాన్స్టిట్యున్సీ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎమ్మెల్యేగా చేసి మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ మెంబర్ని మనం ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో కాకుండా ఇంకో రెండు దగ్గర కూడా అతను నిలబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది। దో జగह वो भी कांटेस्टेड कर सकता। पनिश्ड 2 years। इलेक्शन कमीशन विज पनिशमेंट इज कंपलसरी मैंडेटरी प्रोविजन। इलेक्शन कमीशन प्रोसेस में 2 years तक पनिशमेंट रहेगा। पोस्टपोन करने का चांस रहेगा। कभी सपोज कॉन्टेस्टेड पर्सन एक्सपायर हो गया, वहाँ कुछ रेगिंग हो गया, रेगिंग बोल तो वो चोरी से वोट गिर गया, फोर्ज्ड वोट गिर गया, समथिंग कुछ कंप्लेंट करे अदर कैंडिडेट्स करे, अरे भैया मैं हार जा रहा हूँ, वो कॉन्टेस्टेड वो पूरे फॉल्स वोट डाला रहा, पूरा वोट्स चोर वोट्स डाला रहा, या मेरे को करेक्ट नहीं हो रहा, अब एक बार फिर रिकाउंटिंग कराओ, नहीं बोल तो अब वो फिर इलेक्शन कंडक्ट कराओ बोल रहे। जो एप्लीकेशन देने के बाद वो एप्लीकेशन वी गिवन इन दैट टाइम वी हैव टू स्क्रूटनी we verify the investigation to election commission officer. The election commission officer can hope that we re-elections or recounting or re-ballot checking, anything we can do the इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ओनली। अब अपन जो कंप्लेंट करा उसके ऊपर एक्शन लेने का पावर ओनली इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को रहेगा। वो इलेक्शन में कोई चोर वोट दलाया बोल तो उसका रिकाउंटिंग कराना, नहीं तो इलेक्शन फिर से लगाना, ऐसा सब कुछ एक प्रोसेस है। ऑल्सो दैट प्रोसेस वो एक इलेक्शन कमिश्नर के पास ही उसके पास पावर रहेगा, जो दिएगा ऑर्डर वही फाइनल। उसको अपन क्या बोल रहे, क्वाजी जुडिशियली बोल रहे। कौन ऑर्डर दे रहा, कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर दे रहा। साहब भैया यहाँ रिगिंग हो गया, भैया यहाँ चोर वोट गिर गए, भैया ये बॉक्स गलती से आ गया, इसमें बॉक्स ईवीएम सीधा नहीं काम कर रहा, ईवीएम एक वोट डाल तो एक वोट बता रहा, भैया ये कुछ भी गड़बड़ हो गया बोल तो उसके ऊपर ऑर्डर देते सको है क्वाजी जुडिशियली सिस्टम, इसको कुछ कहते हैं क्वाजी जुडिशियल। ऑर्डर देना, कोर्ट को जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने कोर्ट को जाने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को कॉम्प्लेंट देने के बाद इलेक्शन कमीशन जो ऑर्डर देगा वो ऑर्डर पे अपन कुछ अग्री भी नहीं हो गए, वो ऑर्डर इज नॉट फेवर ऑफ द कैंडिडेट, जब वो ऑर्डर के ऊपर आप कोर्ट को जा सकते। पहले क्वाजी जुडिशियली सिस्टम वी कैन डू द इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर। लिकर 48 आवर्स के बाद लिकर बेचने का नहीं है, लिकर नहीं बने। ओके, द इलेक्शन कंडक्टेड ऑफ द डिसिप्लिन एक्ट। फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कहूँगा भैया, फर्स्ट इलेक्शन के लिए वो एज 18 ईयर्स से इलेक्शन करने का रहता है। 18 ईयर्स में यू कैन बी पार्टिसिपेट द वोटिंग राइट इट्स 18 ईयर्स। इन बिफोर 21 ईयर था, 21 ईयर देर फर्स्ट बिफोर, पहले 21 ईयर था, उसको राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर है ना, राजीव गांधी
प्राइम मिनिस्टर रहने पर जब क्या करे, वो 21 ईयर्स से उसको अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 18 ईयर्स को ला ले। वोट राइट 21 ईयर्स को रखने से बहुत वोटिंग नहीं कर सकते, उसका डेमोक्रेसी लॉस हो जा रहा है। 18 ईयर्स वाले को भी थिंकिंग है हम कुछ कर सकते, हम कुछ अच्छे लीडर को चुन सकते, अच्छे लीडर को चुन सकते, अच्छे एमएलए को चुन सकते, अच्छे एमपी को ले सकते, अच्छा सरपंच को ले सकते, सभी को जो सरपंच इलेक्शन, एमपी इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, ये सब कुछ को अब मैक्सिमम कोई इलेक्शन में वोटिंग राइट ओनली फॉर 18 ईयर्स है। वोटिंग राइट कितना है? 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स के बाद वो वोट डालने का उसको राइट रहेगा। वो मेंबरशिप लेने के बाद वोटर का एप्लीकेशन करना, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन देने के बाद उसको इलेक्शन आईडी कार्ड आएगा, जब वो इलेक्शन में वोट डालने का राइट रहेगा। ओके राइट भैया। फिर नेक्स्ट वी थिंकिंग अबाउट वो ये वोटर राइट आने के बाद आपको क्या है, वोटिंग सिस्टम कैसा रहता है आपको बोला। एक वो पैड रहेगा, लंबा पैड, द पैड एंड मशीनरी, ईवीएम मशीन रहेगा। वो ये ईवीएम मशीन से पहले क्या पेपर्स बैलेट रहेगा। पेपर में आप किसको वोट डाल रहे हो उसके ऊपर पंच करना, उसको स्वस्तिक मार्क रहता। स्वस्तिक मार्क रहेगा। ये स्वस्तिक मार्क क्या है, उसको स्वस्तिक मार्क से प्रिंट कर देना, स्टैम्प करना, जो अपन किसको सेलेक्ट कर रहे हैं उसको स्टैम्प करना। करने के बाद वो पेपर फोल्ड करके बैलेट में डाल देना। बैलेट में रिटर्निंग ऑफिसर, बैलेट ऑफिसर एंड स्क्रूटनी ऑफिसर सब इलेक्शन में ऑफिसर्स बैठे रहेंगे। वो इलेक्शन में वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट बॉक्स ओपन करके 4 मेंबर्स का विटनेस लेंगे। 4 मेंबर का विटनेस क्या, बॉक्स के अंदर पहले से कोई चिट्ठीस है, बॉक्स के अंदर कोई वोट्स है, चेक करना चाहिए। चेक करके उसको एक बार चेक कर देके उसको सील कर देते हैं। कौन सील कर रहे? इलेक्शन प्रिसीडिंग ऑफिसर सील कर देता। और रिटर्निंग ऑफिसर सील करने के बाद, ऑफिसर सील करने के बाद वो सील कर रहे सो बॉक्स को फिर अपन वहाँ रख दे के इलेक्शन से स्टार्ट कर देते। इलेक्शन ओनली 1 डे हो जाता भैया, ओनली 1 डे। इलेक्शन इज ओनली 1 डे में इलेक्शन हो जाता। वो 1 डे में इलेक्शन क्या हो जाता भैया, 1 डे मॉर्निंग 7 o'clock 8 o'clock स्टार्ट हो जाके 7 o'clock से स्टार्ट हो गए, इवनिंग 5 o'clock तक क्लोज हो जाता। 1 डे इलेक्शन रहेगा। वो 1 डे के अंदर आप क्या है करना, जो इलेक्शन वोट राइट है वो यूज़ करना कंपलसरी। वोट राइट ये भारत देश में हर एक इंसान का एक राइट है, वोट राइट। ओके, कंपलसरी लेना। नेक्स्ट इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिनरी एक्शन। सपोज वो इलेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस वो ओबे नहीं करा, वी हैव नॉट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओबे नहीं करने पर इलेक्शन कमीशन वाले कोड ऑफ कंडक्ट में लाइक दैट क्वाजी जुडिशियली पावर है उसके पास। किसके पास है क्वाजी जुडिशियली पावर? इलेक्शन ऑफिसर, जो ऑर्डर पास कर सकता, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता, कोड ऑफ कंडक्ट ले सकता। कोड ऑफ कंडक्ट बोलते जो इलेक्शन ऑफिसर ने एक रूल्स बनाया, वो रूल्स के अगेंस्ट जाने वाले को कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन लेते से वो सिस्टम को क्या कहते हैं? क्वाजी जुडिशियली सिस्टम्स, क्वाजी जुडिशियली फंक्शंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कैस्ट रिलीजन से कोई वोट्स नहीं मांगना, नो पर्सनल कमेंट्स करना। टेम्पल पे, मस्जिद में, चर्च में, होली प्लेसेस में अनाउंसमेंट करना, प्रोग्राम्स करना, इलेक्शन कंडक्टिंग करना, इलेक्शन का कैंपेनिंग करना, इलेक्शन के लिए पैसे बांटना, कुछ चीज़ें देना, वॉचेस, टीवीज वैसे देना, कुछ भी नहीं देना बोल के इलेक्शन प्रोसेस वाले मेन इंपॉर्टेंट की रोल्स भी रिलीज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफिसर। मिनिमम अपना इलेक्शन बूथ से 100 मीटर दूर रहना। इलेक्शन जो हो रहा उस दिन, इलेक्शन आज हो रहा समझो ना, इलेक्शन होते सो ये पोलिंग बूथ से 100 मीटर दूर डिस्टेंस में रहना चाहिए। इलेक्शन बूथ के नज़दीक में भी नहीं रहना। डोंट नियर प्लेस वी सिटिंग इन द इलेक्शन बूथ वी टेकन इन डिस्टेंस ऑफ 100 meters. We compulsory this mandatory provision to we give that provision we can announce with the election commission officers. Okay, then conducting the rallies and gathering. Rallies and gathering क्या है भैया? रैली करना, लाइन से जाना, रैली वालों को अपन रैली जो टाइम में है वो टाइम में करना।
करना, मीटिंग्स कंडक्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल। सपोज़ कोई एम्प्लॉइज़ है, उन घर को जाने का जल्दी में रहता, वो रैली लगा के उसको 1-2 घंटे वहाँ हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली अच्छे मेन सिटीज़ में बहुत ट्रैफिक रहेगा, वो ट्रैफिक में अटक जाएगा, खाने घर को नहीं जाएगा, भूख लग रही रहती है, बच्चे रो रहे, उसको बच्चे का हेल्थ अच्छा नहीं है, उसका फादर का हेल्थ अच्छा नहीं है, मम्मी का हेल्थ अच्छा नहीं है, समथिंग वी आर तो पर्सनल प्रॉब्लम्स रहते। उसको रैली लगाने के बाद क्या हो जाता, सडनली रैली स्टार्ट हो गई तो वो वहीं रुक जाता, उस घर को जाने के लिए उसको बहुत सारा दिक्कत हो गया और बहुत सारा मुश्किल हो जाता जाने के लिए, जब वो टाइम पे क्या करना। इसलिए इसमें एक रूल क्या बने अपने गवर्नमेंट में, रूल क्या है, सपोज़ आप रैली करना चाहते हैं, पुलिस परमिशन लेना चाहिए। आप मीटिंग करना चाहते हैं, पुलिस परमिशन लिए कंपलसरी। रैली आर मीटिंग एनी गैदरिंग टू फर्स्ट कंपलसरी विथ पुलिस डिपार्टमेंट वी हैव टेकन इन परमिशन। परमिशन लेने के लिए आपको एक छोटा लॉजिक बोला, फर्स्ट परमिशन लेना चाहिए तो आप एक परमिशन के लिए रिक्वेस्ट लेटर तो अभी आप करने का इम्पॉर्टेंट है। STO ऑफिस, ट्रेजरी ऑफिस रहता ना, जो ट्रेजरी ऑफिस में भी आपको चालाना पेमेंट करना चाहिए। अपन रैली कर रहे क्या कर रहे परमिशन के लिए, और चालाना बनने के बाद पुलिस परमिशन देगी। पुलिस परमिशन देने के बाद ही वो रैली हो, वो कैंपेनिंग हो, गैदरिंग हो, मीटिंग हो, एनीथिंग है, कैन आफ्टर परमिशन ऑफ द पुलिस। बट वाई आर द पुलिस आल्सो बिफोर वी गिविंग इन परमिशन, बिफोर वी वांट प्लानिंग वन sketch map, one route map, everything also we can decide without other publics cannot be disturbed in conducting the rally or meeting। जो अदर पब्लिक को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होए सर का, वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं होने के सर का, पुलिस ऑफिसर एक रूट मैप बना देंगे, रोड मैप बना देंगे, पब्लिक जाने वाली चली जाती है, मीटिंग उसका मीटिंग कंडक्टिंग हो जाएगा, रैली हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जाने वाले पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चले जाएंगे, आराम से काम हो जाएगा। मगर पुलिस का परमिशन कंपलसरी चाहिए। रिटर्निंग रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, कुछ जैसी पार्टी हो, वो पार्टी में कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस कुछ भी नहीं रहेगा। वो रूलिंग पार्टी भी रहो, इलेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपलसरी फॉलो होना चाहिए। EVM मशीन्स है, EVM मशीन्स में पैड रहेगा, EVM मशीन रहता है, EVM मशीन आफ्टर के बाद उसको सील कर देते, EVM मशीन सील करना चाहिए। सील करने के बाद उसको स्ट्रांग रूम को भेजने के बाद ये करेंगे। थैंक यू।